I think we'll begin. Others will keep on joining in the meantime. Good evening, everyone. I'm Dr. Priyanka from Nirok Street, and I welcome you all for this session with Dr. Satish Ji. So, this session is powered by Mission Ayur Vijay, which is an initiative from Nirok Street Partnership Program. Nirok Street Partnership Program, I think many of you are familiar with, but I would like to give a brief introduction about it. Our partnership program is a community of Ayurvedic doctors. It's not just a medicine purchasing platform, it is a community of Ayurvedic doctors. We are here to discuss, share knowledge, have knowledge sharing sessions like this. We are here to celebrate and shall celebrate the success story of our doctors who are a part of the community, who are able to earn well from the partnership program, and who are able to share their experiences with us, everyone. So, without any further ado, I would like to introduce you all to today's guest. We have Dr. Satish here. Dr. Satish is from Lucknow, and I would like to ask Dr. Satish to please start with your introduction a little bit about your career and about your journey. Yes, thank you, Dr. Priyanka. Myself, Dr. Satish Kumar. I am from Lucknow, and I have completed my BMS, MD, and PhD from Government Ayurvedic College. However, I started my practice just after the BMS. After 25 years of journey, I have treated so many complicated, critical, and the emergency cases also. During the beginning, I start my clinic with both the pathies and Ayurvedic and allopathic. Now I am strictly continue my practice in Ayurveda only, and now I get the knowledge from through my own practice, just day by day, enhancing my clinical journey, and through different gurus, acharya, everything, everyone guide me, and slowly I get confidence on Ayurveda, and slowly I am practicing this Ayurvedic practice in so many critical cases, including the emergency cases also like cancer, tumor, UTI, and so many other cases, psoriasis, and so many other cases. However, through Neuro partnership, I have learned one thing, that the people somewhere doesn't give the money to the physician like the Ayurveda BMS or something, your relative. They do not want to give you the fee. They ignore this, that how many hard work they are doing during the study. And if some people are there surrounding us, your family or your friend circle are more there, then you have to give the Neurostreet one of the best platform for them. I'm just telling you how. आप जब पैसे मांग नहीं सकते और पेशेंट आपको पेशेंट देना नहीं चाहता, तो इस कंडीशन में न्यूरोस्टिक हमारा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन के उभर रहा है, जो मेरे लिए तो हुआ है, शायद वो बिगिनर के लिए भी होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। आप वहां से आपको 500 का भी आप दे रहे हैं, 2 पैकेट भी दे रहे हैं, तो आराम से आपको 40% की मार्जिन तक आपका जो सब कुछ मैंने करके देखा है, तो 40% की मार्जिन के आसपास आपको आपका कमीशन के हिसाब से आ जाता है। तो आपकी जो फीस, आप अगर ऑफलाइन भी देखे होते तो 400 की फीस आपको मिल रही है 1000 की सेलिंग पे। तो ये एक बहुत बड़ा होता है। और कुछ जगह में तो ऑफलाइन में देते हैं पेशेंट, कुछ जगह इग्नोर करते हैं। जब जैसे आपका फ्रेंड सर्किल है, आपका घर में कोई है, रिलेटिव में कोई है, तो आपको हेजिटेशन हो रहा है कि इसे फीस कैसे मांगो। ऐसे कुछ कंडीशन में बहुत हेल्पफुल है। और सेकेंडली कुछ रिमोट एरिया है जहाँ पे मिलता नहीं है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ रिमोट एरिया में आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर है ही नहीं वहाँ पे।
अगर हैं तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ मेडिसिन नहीं है, अगर क्वालिटी मेडिसिन भी है तो वेराइटी नहीं है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे भी न्यूरोस्टिक बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को। तो क्योंकि वो ऑफलाइन भी होते हुए वो लोग खुद कहते हैं कि मुझे भिजवा दीजिए एड्रेस पे। तो बहुत जगह में, बहुत रिमोट एरिया में और बहुत ये जगह में ये आपको हेल्पफुल कर रहे हैं। और ये नीट एंड क्लीनली बहुत ही आजकल जो न्यूरोस्टिक ने ऐप जो वैद्य टूल को भी उन्होंने काफी अपडेट किया है। उस ऑपरेशन के कारण अभी मैं स्वयं भी, अभी किसी को पहले मैं बोलता था कि इसको ऑर्डर कर दीजिए, अभी मैं खुद ही उसको ऑर्डर बुक कर लेता हूँ और शिपमेंट हो जाती है और बहुत अच्छे से वो लोग मैंने मिस नहीं होता है। मैं 3-4 बार मैंने दिया है, जो भी कमीशन जिनकी आनी है वीक एंड में आ जाती है। पहले इसमें भी थोड़ा सा ये था, डिफिकल्टी थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी सुधार करके इसको काफी एनहेंस किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अभी तक का मुझे मेरी जानकारी तक इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को मतलब मैंने बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो आई एम थैंकफुल टू न्यूरोस्टिक एंड आई एम इंस्पायर्ड एंड एनकरेज ऑल द बीएमएस डॉक्टर, और चाहे वो एमडी हो चाहे कुछ भी एरिया है, जो जहाँ पे उनको लग रहा है कि यहाँ पे ऑफलाइन में देना मुश्किल है या किसी को भिजवाना है, जैसे माँ को, भाई को, तो ऐसे एरिया में भी आप उसको भिजवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा न्यूरोस्टिक ने उसको अपडेट करके बहुत बड़ा हमको दिया है। और हम सबको इसके वाले, चाहे आप ऑफलाइन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो ये आपको कभी ना कभी काम दे ही देगा। आप इसमें जुड़ के देखिए तो आपको फायदा होगा ही होगा। कम ज्यादा ऑफलाइन भी मैं भी करता हूँ, मेरी भी क्लिनिक है और ऑफलाइन में भी मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मेरी 400 की फीस है। और मुझे अगर नहीं मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि 400 तक मार्जिन 1000 में आपके 2 पैकेट अगर आप ऑर्डर करते हैं तो सारा मेडिसिन अगर आप 10 डेज के लिए आराम से हो जाता है, 10 to 15 डेज, और 400 आपको कमीशन आ ही जाता है। तो मुझे कहीं भी हैम्पर नहीं होता कि मुझे ये दिए, इसने फीस दिया नहीं दिया, अगर दिया अभी तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो भी वेल एंड गुड। तो इसी तरह से मैंने उसको बुक किया और बहुत सारे पेशेंट मेरे अभी भी जुड़े हुए हैं और फोन करते हैं कि पेशेंट को मेडिसिन भिजवा दीजिए। और यहाँ पे अब वेराइटी ऑफ पेशेंट है, जैसे एक मेडिकल स्टोर में आप जाते हैं तो बहुत सारे मेडिसिन आपको अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, तो न्यूरोस्टिक के पास बहुत सारा, इवन सिद्धा मेडिसिन में मैं लिखता हूँ सेरेन कोट्टाई करके एसकेएम क्या आता है, जो भल्ला तक से बनी हुई है, वो रेयर मेडिसिन है, वो आयुर्वेद किसी भी कंपनी अभी बनाते नहीं है, वो एसकेएम ही बनाता है। तो मैं उसको भी लिखता हूँ जो न्यूरोस्टेट के पास है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट, रेयर प्रोडक्ट भी इनके पास है, बहुत अच्छी चीज है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस तरह से आयुर्वेद प्रैक्टिस करें, जो और भी न्यू कमर्स हैं, काफी एलोपैथिक प्रैक्टिस हो रही है बीएमएस के बाद, और तो मैं धीरे धीरे उसको एनहेंस करें अपनी प्रैक्टिस को। मैंने भी एनहेंस किया और प्रयासरत रहे कि कैसे आयुर्वेद प्रैक्टिस करने से इंडिपेंडेंटली हम खड़ा हो पाएंगे। आज मैं लखनऊ के एसजीपीजीआई के पास ही प्रैक्टिस करता हूँ, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के पेशेंट आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेद प्रैक्टिस करने से क्या फायदा हो सकता है। तो मैंने एसजी पीजी, जैसे चंडीगढ़ के पीजीआई होती है, ऐसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा पीजीआई है, उसके पास हम लोग बैठते हैं। तो सुपर स्पेशलिस्ट के जो फेल्यूर पेशेंट और जिनको कहा जाता है कि 6 महीना 8 महीना इसकी जिंदगी है, उस पेशेंट को भी आप ये करके बहुत हम कंट्रोल करके मैंने रखा है। 2 कैंसर पेशेंट भी मेरे वेल कंट्रोल हो गए हैं। अब उनको 6 महीने बोला था, अभी वो कम से कम 2 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, अभी तक उनका डेथ तो हुई नहीं है, आराम से वेल मैनर से हैं। ट्यूमर रिड्यूस भी हुआ है, उसके में अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं उसको शेयर भी कर दूंगा आपके पास, अभी अंडर ट्रीटमेंट भी है वो लोग। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। धीरे धीरे करके आयुर्वेद प्रैक्टिस को एनहेंस करने से बहुत फायदे हैं। कुछ करना नहीं है, शास्त्र ने बहुत कुछ लिख के गया है, हम लोग उसको थोड़ा गहराई से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है बस। और कुछ नहीं है, बस उसको पढ़ें ध्यान से और उसको प्रैक्टिस करें, अपने लाइफ में उसको उतारें। जो मॉडर्न डायग्नोसिस, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करके हम कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा आयुर्वेद को सिद्धांतों को पढ़ें तो उसमें फायदे बहुत हो रहे हैं। और मैंने अपने प्रैक्टिकल से बोल रहा हूँ, उसमें सम्मान, इज्जत, पैसा सब कुछ आ रहा है। वो एलोपैथिक प्रैक्टिस में वो चीज नहीं आ पा रहा था। हर कोई आपको सेकेंडरी हिसाब से आपको ये करता है, ट्रीट करता है। और जब आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं तो हर कोई आपको सुपरिटी हिसाब से ट्रीट करता है, तो दोनों में काफी फर्क पड़ता है।
आपके समाज में कहीं आप शादी ब्याह में गए, किसी के डॉक्टर्स लोग भी मिल लेते हैं तो काफी वेल रेस्पेक्ट देके आपको बात करते हैं। तो ये आपको फायदा है, तो आयुर्वेद प्रैक्टिस में उतरे। और एक पहले तो प्लेटफॉर्म नहीं था, मैं कल ही नीरोग स्ट्रीट से काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनकी मैंने ग्रोथ को भी जानता हूँ, कैसे उन्होंने किया है ग्रोथ, काफी स्ट्रगल किया है अभी, और धीरे धीरे करके काफी ऊंचाई तक भी अभी आ गए हैं। और भारत में शायद एकमात्र टूल्स है जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के लिए जो वेल कमीशन के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। वो खुद भी ग्रो कर रहे हैं, और जो हमारे डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं वो भी ग्रोथ कर रहे हैं। यस यस, ग्रेट ग्रेट सर। क्योंकि एक्चुअली आप जैसे बता रहे हैं कि आयुर्वेद प्रैक्टिस कम करते हैं लोग, सो दिस इज वेरी कॉमन। जो नए डॉक्टर्स हैं जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं, उनके लिए ये थोड़ा मॉरल बूस्टिंग वाला है कि आप आयुर्वेद ही प्रैक्टिस करें। क्योंकि इनिशियली मैंने भी देखा है, जब लोग बीएमएस कंप्लीट कर लेते हैं, दे आर मोर इनटू एलोपैथिक प्रैक्टिस, क्योंकि उनको आरएमओ वाले जॉब्स मिल जाते हैं जल्दी। बट हमारे शास्त्र को पढ़ना और वापस बेस से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टार्ट करना, इसके लिए ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम भी लगता है और उतना पेशेंस भी चाहिए। सो फ्रॉम आवर एंड एज निरोग स्ट्रीट हम लोग हेल्प करते हैं कि जो नए डॉक्टर्स हैं या जो नए डॉक्टर्स आयुर्वेद में आना चाहते हैं, तो उनको इन्वेंटरी का प्रॉब्लम ना हो, मेडिसिन स्टोर करके ना रखने पड़े। इसलिए हम ऑनलाइन उनके लिए, हमारी ऑनलाइन इन्वेंट्री है जो वो यूज कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन भेज सकते हैं पेशेंट्स के लिए, मेडिसिन पेशेंट के घर फ्री डिलीवरी हो जाता है। तो हमारी तरफ से ये आयुर्वेद के लिए और डॉक्टर्स के लिए टेक सपोर्ट है, जो हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स जिसमें से अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कर सके, जैसे आप कर पा रहे हैं। और आपने अभी बताया कि आप जैसे इतनी बड़ी जगह पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जहां पर सब एलोपैथी से सराउंडेड है, और आप वहां पर एक आयुर्वेद की चिकित्सा दे रहे हैं, तो विच इज रियली कमेंडेबल। तो सर आप बताना चाहेंगे कि आप आयुर्वेद प्रैक्टिस में कैसे आए आफ्टर एलोपैथी? जैसा आपने भी कहा था, इनिशियली आपने एलोपैथी शुरू किया, फिर आप इसमें आ गए फुल। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा, हाँ हाँ, ये ऐसा हुआ कि मैंने हम लोगों ने एक ग्रुप स्टैंड किया, पहले व्हाट्सएप ग्रुप किया सारे डॉक्टरों ने। तो जितने मेरे एमडी करने के बाद फिर डिफिकल्टी वही बनी रही कि हमको डिग्री मिल गई, अब प्रैक्टिस में उतरना है। तो प्रैक्टिस में उतरने के बाद वाले जितने हमारे क्लिनिशियन थे, तो सारे ने एक ग्रुप बनाया, उसमें ऑल इंडिया ग्रुप है, अभी भी वो ग्रुप चलती है। फिर उस ग्रुप में हम लोगों ने शेयर किया आपस में कि क्या क्या डिफिकल्टी क्या क्या आ रही है, क्या क्या मेडिसिन देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, शास्त्र में कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं देना है, क्या करना है। तो ऐसे करके वो ग्रुप आज से मैं करीब 7 to 8 years से हम लोग उसमें जुड़े हुए हैं। और वो ग्रुप काफी इंडिया में काफी फेमस है, और वहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं वहाँ से, जामनगर के, बीएचयू के, सारे ऑल इंडिया, त्रिवेंद्रम की, केरला के भी लोग उसमें हैं। तो धीरे धीरे करके वो सारे एमडी ग्रुप्स उसमें जोड़ते गए, तो वो ग्रुप ने मुझे काफी हेल्प किया। और फिर मैं भी उतरा आयुर्वेद प्योर प्रैक्टिस पे। फिर हम लोग उसको फिर देने लगे, और फिर हमने रिजल्ट भी देखा, काफी अच्छी आ रही है। तो हम लोग जो हम नीरोग स्ट्रीट से मंगवाते हैं, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो नीरोग स्ट्रीट मंगवाते हैं उससे से मेरा 80% रहता है, 20% हम लोग कुछ जो हर्फ भी जोड़ते हैं उसमें, कभी हर्ब्स का क्वाथ, कभी लेप, कभी कुछ, तो ऐसा मार्केट से लेके उसको लेके जोड़ते हैं, तभी वो रिजल्ट एकदम अच्छे से आता है। जैसे जलों का अवचरण करना, तो जलों का आदमी रख भी सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, उसके लिए पानी चाहिए, चेंज करना है, आप जलों का दे सकते हैं। जैसे सबको जानते हैं कि रक्त मोक्षण करने से स्किन डिजीज ठीक होता है, लेकिन रक्त मोक्षण का करके हमने हार्ट डिजीज को भी ठीक किया है, हमने पेन, स्पाइन में पेन होता है उसको भी ठीक किया है। तो इससे पेन में भी यूज हो रहा है वो, और कई जगह यूज का, शायद मुझे ऐसे ऐसे लगता है कि वहां पे हमारे ग्रुप में एक जने लिखा कि इसीलिए धन्वंतरी जी हाथ में जालौका लिए उनकी मूर्ति बनी हुई मिलती है, क्योंकि वो जालौका का काफी जगह यूज है, बात पीत का तीनों जगह यूज है। तो हमें खाली पित्तानुबंध कहाँ पे है, ये थोड़ा सा ध्यान रख के तो त्रिदोषज व्याधि में भी उसको यूज कर सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा पित्त मतलब दाह होना, जलन होना, इस तरह से है, और त्रिदोषज व्याधि है, चाहे कोई भी व्याधि हो, तो हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यूज करके देखा, और यहाँ पे फाइब्रोसिस था, बोकल
मुंह के अंदर भी हमने जोलोका का यूज किया, वो फायदे हो रहे हैं एक्चुअली। वो जो हम मुंह नहीं खोलते हैं, जो तंबाकू अगर खा के जो लोअर क्लास जो मैंने रिक्शा पुलर होते हैं, वो काफी ज्यादा मैंने ऑटो ड्राइवर होते हैं, वो उनका मुंह नहीं खुलता, तो हमने उसे वो फाइब्रोसिस में भी यूज करके देखा, तो वहां पे भी वो गल रहे हैं। और उसके जालुका के जो माउथ में है वो हेपारिन होती है, तो हेपारिन होने से वो एंटी कोगुलेंट का अच्छा काम करता है, ब्लड थिनर का भी काम कर जाता है। तो उसे उसके बाद हम हार्ट डिजीज में यूज किए, तो उसमें भी फायदा मिलने शुरू हुए। फिर हम ये भी करते हैं, मतलब डोसा के अनुसार उसके दवाई भी प्रेस्क्राइब करते हैं। जैसे मैं कभी जरूरत पड़ी तो वहां वहां से भी न्यूरोस्टिक से भी मंगवा के उनको दिला देते हैं। लेकिन कहने का मतलब, जब थोड़ा सा इधर मिक्स करके जब करते हैं आयुर्वेद का, जो रॉ आयुर्वेद जो जिसे कहा जाता है, या हम जो पैटर्न आयुर्वेद, दोनों मिला के जब करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत सेटिस्फैक्टरी आ रहा है। और इसी माने माने सब कुछ देने से ही उसको माने सिद्धांत के अनुसार, बुक के अनुसार, शास्त्र के अनुसार वो सही बैठ रहा है और रिजल्ट भी बहुत कम दिनों में मिल रहा है। मतलब मैंने इमरजेंसी में डील करके देखा है, तो इमरजेंसी में भी पेन बहुत सीवियर पेन था एक का, तो इवन डाइक्लोफेन सोडियम ट्रामाडोल कैटोप्रोल यहाँ पे जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है, वो फेलियर हो गया, हम जलोका दिए हैं केवल, और उसमें आराम मिला है विद इन 2 आवर्स में। तो ऐसा भी हमने प्रयोग करके देखा है। तो स्पाइन का बहुत सीवियर पेन था, उसके एनेस्थेसिया में लास्ट में एनेस्थेटिक करने वाले थे, और हमने उसको जालुका दिया है, और वहाँ पे वो पेन रिड्यूस हुआ है, और स्लोली स्लोली बोले कि 3-4 घंटे में काफी हद तक आराम हो गया था। तो ऐसा करने का मतलब काफी सारा मैंने वैद्यों के साथ भी अनुभव हुआ है, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, वो वीडियो भी शेयर करते हैं कैसे ट्रीट किए पूरा। जैसे अग्निकर्म का था एक, जो नेडिल है, और वहां पे हम लाइट का जो लाइटर जलाते हैं फ्लेम के चलते, तो वैसे को उस पिन को भी गर्म करके इनडायरेक्ट हीट को ट्रांसफर करके वहां से पेन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो वैसा बहुत सारा टेक्निक्स उन्होंने सिखाया, और जो हम भी ठीक करते थे, हम भी उनको शेयर करते थे। ऐसे शेयरिंग से ही ये होता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि वैसे ऐसे सीनियर जूनियर का कोई डॉक्टर्स का अपने अपने एरिया में व्हाट्सएप बांध के उसको शेयर करना चाहिए, तभी ये आयुर्वेद आगे बढ़ पाएगा और उसको मैंने कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि स्कूलिंग एज मैंने कॉलेज एज में वो कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता जो थ्योरी में आता है। हमें थ्योरी ज्यादा पढ़ाया जाता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। चाहे मैं ज्यादा मैंने ओपन फील्ड में नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम से मैं खुश नहीं हूँ। मतलब जितना प्रैक्टिकल अप्रोच हमारा थोड़ा कम है कॉलेज लाइफ में, चाहे आप कहीं पे भी चले जाइए, जितने भी अच्छे कॉलेज में चले जाइए, प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ा कम है, थ्योरेटिकल अप्रोच ज्यादा है। जबकि वो एमबीबीएस में उन लोगों का प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा है और थ्योरेटिकल अप्रोच कम है। तो इसीलिए हमारे डॉक्टर्स थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं आयुर्वेद प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि उनको एक्चुअली बेस मिला ही नहीं है आयुर्वेद प्रैक्टिस का। वो स्लोली स्लोली टीचरों से मिलके, सीनियर से मिलके, धीरे धीरे करके उनका कॉन्फिडेंस गेन होता है। तो इसी के लिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए अपने अपने एरिया में, और अपने अपने एरिया के शेयर कीजिए नॉलेज को, तो उसमें ज्यादा बहुत फायदे हुए। मेरे को तो हुए हैं पर्सनली। अगर किसी को कोई इंटरेस्टेड है तो मैं कहें तो मैं उनको उस ग्रुप में भी जोड़ दूंगा, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम एमडी हैं, तो इसीलिए शायद थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो मैं इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब आपस में जुड़ जाएं जितने बीएमएस हैं, और जो जो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो 2-4 साल में आपके गेन हो जाएगा, ऑटोमेटिक गेन हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो परफेक्टनेस आएगा नहीं, कॉन्फिडेंस गेन होगा ही नहीं। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करना जरूरी है, चाहे वो सही हो गलत हो। आप चाहे मिक्स करें पहले आयुर्वेद एलोपैथी करके, धीरे धीरे करके सीनियर से पूछें कि यहाँ पे एलोपैथी ना दे कि मैं कैसे मैनेज करूँ, कोई ना कोई सीनियर आपको हेल्प करेगा ही करेगा। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं इसमें कंट्रोल कर सकता हूँ। बहुत सिद्धांत बहुत सिंपल है। आपको जैसे मैं पहले पहले मैं अपना अनुभव दे रहा हूँ कि पहले हम लोग कैसे करते थे। पहले जैसे जॉन्डिस होता था तो मैं लीव 52 वगैरह ये सब लिखते थे, है ना। तो उसमें ज्यादा रिमार्केबल हुआ नहीं। मैंने फिर सिद्धांत को पढ़ना शुरू किया, उसी ग्रुप ने नहीं एनकरेज किया कि सिद्धांत पढ़िए। तो सिद्धांत में हमारे कामला में लिखा है, तो बहुपित्तेसी विरेचन लिखा है, तो बहुत पित्त है, मतलब जॉन्डिस अगर ज्यादा है, बिलिरुबिन लेवल ज्यादा है, तो विरेचन करने को कहा गया। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं। तो जब तक विरेचन करेंगे नहीं तो वो फिर हमको ड्रग ढूंढना है कि कौन सा पित्त विरेचन के लिए अच्छा है। तो मैंने फिर देखा कि कुटकी उसमें से श्रेष्ठ लिखा है, तो मैं कुटकी पाउडर ब्यास का नीरोग स्ट्रीट से ही मंगवाया था। तो फिर उसको दे के फिर हमने उसको विरेचन करवाया।
उसके घर पे ही, वो ऑनलाइन पेशेंट था, ऑनलाइन पेशेंट को मैं बार बार उसको फोन से बताता रहा, वो करता रहा, और जब वो पित्त हटा तो वो एक माने सिरोसिस का पेशेंट था, इनिशियल स्टेज था, तो वो काफी ज्यादा रिकवर्ड हो गया। रिकवर्ड होके अभी उसके जो फाइनल रिपोर्ट थे उसमें से करीब करीब उसने 90% मैंने गेन कर लिया है, और उसके बिलिरुबिन लेवल 1 तक आ चुका है। केवल फाइब्रोसिस के जो हैं वो तो बोलते हैं इरिवर्सिबल है, वो कोशिश कर रहे हैं वो भी शायद रिवर्सिबल हो जाएगा, लेकिन मॉडर्न बुक में लिखा है कि वो मैं मॉडर्न बुक भी फॉलो करता हूँ, तो मॉडर्न बुक में इरिवर्सिबल लिखा है। जब 90% रिवर्सिबल हुआ है तो 10% भी होगा, तो इसी आशा से हम लोग उसके वृद्धि वाटिका बटी अगर अभी उसमें दिया है, ताकि उसकी वृद्धि में जो ग्रोथ में थोड़ा सा रिड्यूस हो। तो इस तरह से मैंने कहने का मतलब, हम थोड़ा शास्त्र को जब तक नहीं पढ़ेंगे तो वो LIV52 लिखने की आदत पड़ी रहेगी, तो वो ऐसा सिंगल ड्रग को निकाल के फिर उसमें जब जोड़े तो वही LIV52 व लिवोमिन जो आपकी जो पेटेंट ड्रग है वो काम करना शुरू कर रही है। तो कहने का मतलब, जैसे आपको कुटकी नहीं मिल रहा है तो आप आरोग्यवर्धिनी भी दे सकते हैं, क्यों आरोग्यवर्धिनी में मेन इंग्रेडिएंट कुटकी है, तो ऐसे कुटकी को भी आप यूज कर सकते हैं इनडायरेक्ट वे से। तो जो भी आपका सिद्धांत के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, एवेबिलिटी के अनुसार, ड्रग एवेबिलिटी, ये तीनों को देख के आप अगर पैकेज बनाते हैं तो आप देखिएगा उसमें सक्सेस होते जाएंगे। ऐसे में श्वास का केस भी तमकेतु विरेचन में आप जानते होंगे, तो वहां पे भी विरेचन देखे तो वहां पे कुटकी देके नहीं किया हूँ, वहां पर अनुलोमन चाहिए तो मैं हरितक्यू का यूज किया। तो वहां पे थोड़ा सिद्धांत भी देखिए, बुक भी देखिए, किताब भी खोलिए, तो कौन सा विरेचन कौन सा ड्रग के साथ और किस व्याधि में देना है। तो इस तरह से उसको अगर डेवलप करेंगे, और सिद्धांत को नहीं छोड़ना है, सिद्धांत जितना लिखा है सही लिखा है, क्योंकि वो आपके द्वारा लिखा गया है, कोई साधारण आदमी के द्वारा। आज के रिसर्चर नहीं है जो आज रिसर्च के कल बैन कर दिए, तो वो लोग जिन्होंने सिद्ध मुनि ऋषियों ने लिखा है, तो उसको ऐसे माने कि वो आपका संदेश है, वो भगवान का दिया हुआ आदेश है, उसको समझें और प्रैक्टिस करें। नहीं समझ में आता किसी सीनियर से पूछ ले, कोई ना कोई तो हेल्प आजकल सब कुछ कर रहे हैं, कर देंगे कोई ना कोई। तो आपके सीनियर भी जो है टीचर हैं उनको उसको पूछिए और सिद्धांत बता देंगे। सिद्धांत बताने के बाद वही मॉडर्न डायग्नोसिस भले कीजिए। मॉडर्न डायग्नोसिस हम इसलिए करते हैं कि पेशेंट सेटिस्फाई है, पेशेंट का बिलिरुबिन रिड्यूस हो जाता है तो पेशेंट सेटिस्फाई रहता है। उसको आप सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है। आयुर्वेद का सिद्धांत तो केवल आयुर्वेद के डॉक्टरों के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और उनकी चिकित्सा में निखरता माने शार्पनेस लाने के लिए। लेकिन पेशेंट के लिए मॉडर्न डायग्नोसिस ही मेन रहता है, वो उसी में सेटिस्फाई होता है। तो अगर MRI में वो रिड्यूस हो गया तो वो बोलते हैं हाँ रिड्यूस हो गया, अगर वो एक्सरे में फाइब्रोसिस हट गया तो वो बोलते हैं हाँ फाइब्रोसिस हट गया। तो इसीलिए उनको उनको सेटिस्फाई करने के लिए मॉडर्न मॉडर्न ये भी कीजिए, बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट। और फिर आपको देखिएगा पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा अपने आप पेशेंट देते हैं। पैसा फीस तो मतलब जितना चाहेंगे उतना मिल जाता है, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो कॉन्फिडेंस करने के लिए आपको पहले 1-2 केस शास्त्र अनुसार कीजिए, उसको पब्लिश कीजिए अपना लोकल एरिया में, न्यूज़पेपर में, फिर आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी, फिर अपने आप पेशेंट धीरे धीरे करके ग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे आप अपने अपने एरिया में। फिर भी करना चाहे, मैंने बहुत कम लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा शास्त्र को पढ़ें और मॉडर्न जांचें भी करवाएं लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, और आयुर्वेद प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने एकदम बहुत पिन पॉइंट गाइडलाइंस दिए हैं टू स्टार्ट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। और अभी आपने जैसा बताया कि ग्रुप ज्वाइन करना है या किसी से सीनियर से डिस्कशन करना है, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा ओपन है। हमारा पार्टनरशिप प्रोग्राम आपके में प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी प्रैक्टिस जी सभी लोग डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जी, सो दिस इज द ओनली वे। हम भी चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बने और एक दूसरे के लिए हम हेल्प कर सकें, किसी केसेस में मदद कर सकें या किसी संहिता से रिलेटेड कुछ हो तो हम बात कर सकें। इसीलिए हम भी अपने एंड से पार्टनरशिप प्रोग्राम में अलग अलग केसेस के लिए, अलग अलग डिजीजेस के लिए वेबिनार्स करते हैं। पिछले हफ्ते हमने PCOD पे किया था। तो हम इसी तरह से डॉक्टर्स से पूछते हैं, फिर एक एक डिजीज अगर हम लेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे तो नॉलेज इसी तरह से शेयर होगा, इसी तरह से केसेस भी शेयर होंगे। और मेडिसिन के लिए जो भी है, हम आपको मेडिसिन की एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो आपके पास एक हैंडबुक जैसा हाथ में रहता है कि ये सारे मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उसका आपको यूज कैसे करना है वो केस टू केस बेसिस पे, आप पेशेंट जैसे आएगा तब आप कर ही सकते हैं। स्टिल आपको अगर कोई डाउट हो तो हमारा पैनल ऑफ डॉक्टर्स यहाँ पर है निरोग स्ट्रीट के साथ। प्लस हम आपको भी विथ
medicines and along with case sharing and webinars, हम सोशल मीडिया, अभी जैसे सर ने बताया कि आप अपना थोड़ा पब्लिसिटी कीजिए जब आपका कोई डिजीज आप क्योर कर लेते हैं, तो सबसे इजी वे और सबसे फ्री में आप अगर ये कर सकते हैं तो आपका सोशल मीडिया चैनल है। आप फेसबुक पे अपना केस लिख के आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी आप जो भी मीडियम यूज करते हैं, व्हाट्सएप भी है जिसमें आप अपना टाइप करके आपने कैसे केस को रिवर्स किया, आपने क्या किया उसके लिए, ये आप शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके जो बाकी के फ्रेंड्स हैं, आपका जो सोशल सर्कल है, वो देख सकता है कि आप इस सारे डिजीजेस को ट्रीट कर रहे हैं। हम आपको अपने एंड से क्रिएटिव बना के भेजते हैं, जो आप अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि सर अभी कह रहे हैं कि लिवर के डिजीजेस हैं, तो हम किसी लिवर के डिसऑर्डर पे व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए, फेसबुक पे शेयर करने के लिए क्रिएटिव बना के भेजते हैं, विच इज ओनली गिवन टू आवर पार्टनर डॉक्टर्स। तो वो आप शेयर करके आपके जो फर्स्ट सर्कल में फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो ये देख सकते हैं कि आपने वो सब शेयर किया है, और फिर उसके बाद आपका फुटफॉल भी बढ़ता है। इसी तरह से आपकी सोशल मीडिया रीच भी बढ़ती है। तो डॉक्टर सतीश, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपने हमारा पार्टनरशिप प्रोग्राम कब ज्वाइन किया? कितने महीने से आप हमारे साथ जुड़े हैं? हमारे जुड़े हुए करीब 1 साल हो जब से ओपन हुआ है, जब से पार्टनरशिप फर्स्ट प्रोग्राम आया है, तो उसमें डॉक्टर मिस्टर अर्पित करके थे, तो उन्होंने मुझे लिंक भेजा था, तो बोले कि हम एक पार्टनरशिप प्रोग्राम खोलने जा रहे हैं। तो मैंने तुरंत उसको किया था ज्वाइन, क्योंकि मुझे पहले से ही मालूम था कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ मैंने हार्ड वर्कर फील्ड है, मैंने काफी लोग हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो मैंने तुरंत उसको किया था ज्वाइन, और तुरंत उसके बाद मैंने उसमें प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, फिर ऑर्डर देना भी शुरू कर दिया। तो उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ बढ़ता गया। गया थोड़ा सा, ग्रेट, हाँ, दायरा बढ़ता गया। ग्रेट, ग्रेट सर, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू विद अस। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि अब हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से ऑलमोस्ट 5,000 डॉक्टर्स ज्वाइंड हैं हमारे ग्रुप में, और सब नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, नॉलेज शेयर करते हैं। तो दिस इज वेरी, इट्स अ वेरी प्राउड थिंग फॉर अस, बिकॉज वी आर कनेक्टिंग द आयुर्वेद कम्युनिटी। और लास्ट मंथ हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी निरोग स्ट्रीट की प्रशंसा की थी, और निरोग स्ट्रीट के बारे में बताया था कि ये सबसे अच्छा नया आयुर्वेद को साथ लेके चलने वाला हमारा स्टार्टअप है। तो उनकी मन की बात में उन्होंने हमारा निरोग स्ट्रीट को मेंशन किया था, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के नाते बहुत प्राउड फीलिंग है कि हमारा आयुर्वेद आज इतने बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे है। एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू कनेक्ट ऑल द आयुर्वेद डॉक्टर्स टुगेदर एंड फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। तो वी आर रियली हैप्पी डॉक्टर सतीश जी, आप हमारे साथ जुड़े इस मैडम प्रोग्राम में। मैडम कुछ लोगों ने कुछ मैंने डॉक्टर्स ने कुछ मैंने लिखे हैं कुछ चार्ट में, अगर जी, उसमें थोड़ा पढ़ के सुना दें तो मैं यस, कुछ हेल्प कर सकूं। डेफिनेटली, मैं अभी वही कहना चाहती थी। जो हमने क्रिएटिव शेयर किया है, जिसमें डॉक्टर सतीश जी का नंबर भी है। सर, आप चैट में अपना नंबर डाल सकते हैं अगर आप शेयर करना चाहें तो। अगर हाँ किसी मैं, को भी डॉक्टर सतीश जी से पूछना है, कुछ डाउट्स हैं क्लिनिक केसेस रिलेटेड, पार्टनरशिप प्रोग्राम रिलेटेड, एनीथिंग, तो आप उसमें डेफिनेटली डाल सकते हैं। बिफोर वी गो टू क्वेश्चन आंसर्स, माय लास्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर सतीश। सर, आपने जब से ज्वाइन किया है हमारे साथ, तो आपको इनकम वाइज क्या, कैसे इम्प्रूव हुआ? आपको लग रहा है कि आप कुछ नॉर्मल प्रैक्टिस से थोड़ा ज्यादा कमा पाए हैं हमारे साथ? जी 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 मैडम, मैंने ऐसा ऐसा ज्यादा कम की तो बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैं इतना है कि मैंने मतलब जितना मैंने चाहा उतना मिला। कैसे मिला, जो कमीशन तो मुझे मिला, मुझे रिवार्ड भी एक मिल चुका है 2000 ग्रेट, का। हाँ, तो ग्रेट। एक इंसेंटिव का 2000 एक्स्ट्रा मेरे अकाउंट में आ चुका है। साथ ही साथ बीच बीच में मैं जो जैसे मैं मेडिसिन परचेज करता हूँ, तो जो बेस्ट ऑफर होता है, वो बेस्ट ऑफर में मैंने 50% का ऑफर भी अवेल किया है, कि हम कुछ ही लोगों को, चुनिंदा लोगों को दे रहे हैं करके, तो 50% का ऑफर भी मैंने अवेल किया है। तो मेरे कहने का मतलब वही है कि आप लोग जुड़िए इसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा। मैंने कम्युनिटी के लिए तो अच्छा ही है, और नेरो स्ट्रीट जितना बैलेंस दे रहा है, शायद मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी इतनी बड़ी
मैंने शेयरिंग होल्डर, क्योंकि मैं लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 से 20% तक देने के लिए भी लोग हिचकिचाते हैं, और यहाँ तो आपको 50% सीधे सीधे दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मैंने ये है कि ऑफलाइन में, और पेशेंट आजकल कोई जाना नहीं चाहता, सिटी लाइफ में कोई जाना नहीं चाहता कि हम पेट्रोल जला के 5 जगह घूमे, फिर 5 एक कहीं स्टोर से मिला, कोई नहीं मिला, फिर घूमे, फिर शाम को आए, तो 3-4 घंटा तो उनको खाली दवाई कलेक्शन में ही वेस्ट हो जाते हैं टाइम उनके। तो वो खुद ही बोलते हैं कि हमारे लिए अब मंगवा दीजिए, बोलते हैं, क्योंकि डिलीवरी चार्ज तो दिया नहीं है, नहीं 500 के अबर, तो आराम से वो खुश होते हैं। तो मैंने कहा तो करीब करीब 6-7,000 में आराम से आ गए हैं, मतलब बहुत आते हैं। तो आपके ऑफलाइन करते हो, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो और ज्यादा आ जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब आप जहाँ पे भी हैं अपने फ्रेंड सर्किल में आप ऑफलाइन भी कीजिए, और इसको ऑनलाइन के हिसाब से अपने पास रखिए। तो जिससे ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो बस आपको खाली उनको कंसल्ट लेना है कि आप वो एग्री हैं, देख लिए तो आप उसको नंबर लीजिए, उनका एड्रेस लीजिए, बस हो गया काम। बाकी तो मेडिसिन पहुंच ही जाएगी वहां तक। तो इसीलिए भी बहुत बड़ा ये है, एडवांटेज है हमारे यहाँ पे डॉक्टरों के लिए, जहाँ पे लोग हेजिटेट करते थे फीस देने के लिए, क्योंकि एक बार खा लें, अगर अच्छा लगे तो फिर ऑफलाइन आते हैं मेरे। हाँ, मैं एक शेयर करना भूल गया, तो एक केसेस ऐसे भी थे जो मेरे फ्लाइट में थे, उन्होंने नंबर दिया, वो बिलीव ही नहीं करते थे कि आयुर्वेद में ठीक होता है कोई भी बीमारी, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद कभी नहीं खाया था। तो उनका मैं थोड़ा सा रिलेटिव भी थे, तो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, वो फॉरेन में थे, तो वो यहाँ इंडिया आए हुए थे। तो फिर उन्होंने वहां पहुंच के बोला कि मुझे, अच्छा ठीक है, मैं अभी 1 महीना हूँ, तुम मंगवा दो दवाई। तो फिर मैंने दवाई मंगवाने के बाद उनको काफी आराम जब हुआ, तो वो फिर उसको लेके फिर मंगवा के मेरे से 1 महीने का और मंगवा के वो लेके गए वहां तक। वो थे थायराइड के पेशेंट। तो हम लोग थायराइड के भी, जब वो लास्ट में गए तो 100 mg खा रहे थे थायरोक्सिन। जब वहां पे 1 मंथ के बाद वो 50 में आ चुके थे, अब उनको बिलीव हो चुका था कि ये 50 भी शायद कम हो जाएगी, या हट जाएगी, या बंद हो जाएगी। तो वो उस खुशी से लेके उस मेडिसिन को लेके चले गए हैं यूएस। तो ये कहने का मतलब आपको खाली फोन नंबर लेना है और एड्रेस लेना है, और आयुर्वेद का सिद्धांत वहां पे थोड़ा सा डालना है। बस यही आपकी है सबसे अच्छी चीज है कि वो वहां तक भी पहुंच रही है, घर घर तक जा रही है। अच्छा स्कीम है। यस, एक्चुअली आपकी ये सारी बातें सुन के, आपके केसेस सुन के, डेफिनेटली हमारे जो भी डॉक्टर्स अभी जुड़े हुए हैं, जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहेंगे, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए तो ये डेफिनेटली इंस्पिरेशनल है। प्लस आप जो निरोग स्ट्रीट के साथ एडिशनल सर्विसेज में से आप फायदा ले पाए, वो सुन के भी डेफिनेटली लोग मोटिवेटेड हो गए होंगे अब तक आपकी सारी बातें सुन के। हम क्वेश्चन आंसर्स में देखते हैं जिन्होंने क्वेश्चंस कुछ टाइप किए हैं। तो एक ही क्वेश्चन है फ्रॉम वैद्य धीरज पांडे जी। A patient with high total bilirubin, direct and indirect, SGOT, SGPT normal range. Rest patient is asymptomatic, facing only irregular bowel habit. इस पे आप क्या बता सकते हैं? तो उनके डायरेक्ट बिलिरुबिन कितना है और इनडायरेक्ट कितना है? वैद्य धीरज, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको पेशेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक पूछना है तो आप डॉक्टर सतीश जी को कॉल कर सकते हैं, और क्योंकि आपको पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री सर के साथ शेयर करनी पड़ेगी, तो वो उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट एक्यूरेटली गाइड कर सकेंगे। मेरा नंबर थोड़ा सा अगर हो सकते हो तो नोट करवा दीजिए। मेरा नंबर है, मैं फिर भी बोल दे रहा हूँ, 83 03 जी 64 64 83। 83। जो भी मुझे कोई भी जानना चाहते हैं तो मैं फ्री से अपना शेयर कीजिए, अपना गाइडेंस लीजिए। ये मैंने एक सीनियर होने के नाते मैं उनको गाइड कर दूंगा मेरे से जितना हो पाएगा। डेफिनेटली मैंने आपका नंबर शेयर किया है, आप में से किसी को भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली सर से बात कर सकते हैं, और ही विल बी एबल टू गाइड यू, क्योंकि हर एक केस अभी डिस्कस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और हाँ। आपको जो भी केस के डिटेल्स देने हैं वो आप सर के साथ 1-on-1 शेयर कर लीजिए। आप में से जो भी लोग हैं जो हमारे पार्टनरशिप प्रोग्राम में अभी तक ज्वाइन नहीं है, तो हमने लिंक शेयर किया है चैट पर ही,
तो आप प्लीज वो लिंक ओपन करके आप उसमें से हमारा पार्टनरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. इफ यू वांट, आई एम शेयरिंग दिस लिंक अगेन. पार्टनरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन करेंगे तो हमारा इसी टाइप के जो हमारे वीकली सेशंस होते हैं, जिसमें हम पार्टनर की सक्सेस स्टोरी सेलिब्रेट करते हैं, कुछ केसेस डिस्कस करते हैं. दिस इज आवर चांस टू टॉक अबाउट आयुर्वेद. कुछ केसेस अलग से हम सुन सकते हैं. आयुर्वेद ने कैसे क्रॉनिक केसेस में मदद की, ये हम जान सकते हैं. प्लस विद दैट हम जो हमारे पार्टनर डॉक्टर हैं, हम उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं. इसीलिए हम ये वीकली सेशंस रखते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे वेडनेसडे वेबिनार्स होते हैं, जिसमें हम क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल टॉपिक्स पे हम वेबिनार अरेंज करते हैं. एंड अलोंग विद दैट हम वीकली क्विज भी रखते हैं. जो क्विज आप जीत के आपको वाउचर्स मिलते हैं, जो आप निरोग स्ट्रीट पे यूज कर सकते हैं, विच आर फुल्ली रिडीम्ड. तो वो भी आपके लिए एक हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी प्लान करते रहते हैं. प्लस आपको मेडिसिन के साथ मार्जिन तो डेफिनेटली मिलता ही है. अभी हमारा वैद्य टूल जो है, विच इज एन एक्सक्लूसिवली पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे पार्टनर डॉक्टर्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है. जैसे अभी डॉक्टर सतीश जी ने कहा कि वो अब वैद्य टूल यूज करके खुद ही ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं. तो वैद्य टूल का अगर आप यूज कर देखेंगे तो उसमें आप अपने आप पेशेंट्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. पेशेंट का एड्रेस डाल के पेशेंट के घर मेडिसिन डायरेक्टली जा सकते हैं. आपको पेशेंट के लिए पेशेंट का केस पेपर भी आप उसी टूल पे यूज कर सकते हैं. सो ऑल दैट विल बी मेकिंग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड क्लिनिक फॉर यू. अगर आप घर से भी प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको क्लिनिक फुल टाइम क्लिनिक में नहीं पॉसिबल होता है, तो आप घर से भी वैद्य टूल का यूज करके आप ऑनलाइन कंसल्ट इजीली कर सकते हैं. So I think that will be really helpful for boosting your Ayurved practice. और जब आप हमारे पार्टनरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाते हैं और आप हमारे पार्टनर डॉक्टर बनते हैं, तो हम आपके लिए एक वेब प्रोफाइल बनाते हैं. मैं अपनी वेब प्रोफाइल और हमारी दूसरी डॉक्टर जो है डॉक्टर कीर्ति, उनकी प्रोफाइल की लिंक भी यहाँ पर शेयर कर रही हूँ. ये जो वेब प्रोफाइल है, ये भी सिर्फ पार्टनर डॉक्टर्स के लिए बनती है, जिसमें हम जो भी डॉक्टर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स हम शेयर करते हैं, जो विजिबिलिटी देता है. जैसे आप गूगल में अपना नाम सर्च करेंगे तो आपको वेब प्रोफाइल जब हमारी होगी तो निरोग स्ट्रीट से जुड़ा हुआ आपका नाम दिखेगा. आपके क्लिनिक के टाइमिंग्स दिखेंगे, आपकी फोटो दिखेगी, आपकी स्पेशलिटी दिखेगी, आप कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें दिखेगी. क्योंकि अलोंग विद दैट गूगल में अगर निरोग स्ट्रीट की रैंकिंग देखेंगे तो हम पूरे वर्ल्ड में 1700 रैंक करते हैं, विच इज वेरी हाई फॉर ग्लोबल प्रेजेंस एंड विच इज वेरी हाई फॉर आयुर्वेद. आयुर्वेद में हम अभी टॉप मोस्ट हैं. तो आपकी विजिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती है. आप वो प्रोफाइल लिंक भी अपने पेशेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वो आपके बारे में और डिटेल में जान पाए. So all these are available when you become our partner doctor, just like Dr. Satish is the partner doctor with us since the beginning. And with this note, I would like to thank Dr. Satish for your time. आपने बहुत अच्छे केसेस भी हमारे साथ शेयर किए, आपने आपका एक्सपीरियंस भी शेयर किया. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप बाकी लोगों के भी साथ ग्रुप में गाइडेंस में रहें और आप उनको भी गाइड करें अगर उनको कोई भी डिफिकल्टी आती है किसी भी केस के लिए. Okay, thank you, madam. Thank you so much, Dr. Satish. It was a pleasure having you. Thank you everyone for joining. Please check out the links from the chat box.